Hello guys. So today let us see this chapter vectors. I think explanation already हो गया है class में, but I'm just making this video just in case if you have missed anything in the class. So see this class or the kids who probably attend the class या फिर even will watch this videos, they will be from the science stream, they will be from the commerce stream, and they will also be from the humanities stream. Correct? Now, I know some of you have already learned this topic to a certain extent, but in this particular chapter, of course, keeping in mind that we have kids from different kind of commerce and humanity section as well, we are going to do this topic as though we are doing it for the very first time. Okay, so we're going to talk about vector algebra. When we talk about algebra, okay, we know what are we talking about. We are talking about signs of plus, minus, multiplication, correct? Division doesn't come in vector algebra. So we are going to deal with these three basic signs, okay? Now, first of all, let us see what is, we have come across a concept of physical quantity, correct? Now, what is a physical quantity? What do you mean by physical quantity? Physical quantity also, I mean, not when you are in grade 12, but before grade 12, you all have been in grade 10 and grade 9 and all that, correct? तो basic थोड़ा तो पता ही होगा आप लोगों को, correct? तो physical quantity में there are two things. One which is called as the scalar quantity, correct? And there is another one which we call as the vector quantity, correct? This is vector quantity. Now, scalar quantity क्या होता है? Scalar quantity is something which will require only magnitude. करेक्ट, ओनली मैग्नीट्यूड. स्केलर क्वांटिटी में क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए. मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? लाइक 2 kg शुगर, 2 feet टॉल एसेट्रा, करेक्ट, स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड. और in what does vector require then? Vector requires magnitude तो है ही, it requires magnitude, yes, but with magnitude it also requires something called direction, है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हमें एग्जाम्पल देखना है तो यहाँ पे we can say we are looking at things like 2 kg sugar, है ना? दो we got 2 kg of sugar, या फिर somebody is we can say 5 feet tall, है ना? ये सब एग्जाम्पल्स जो है वो आते हैं स्केलर क्वांटिटी में. ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट वेक्टर क्वांटिटी यानी वी आर गोइंग टू डील विद डिस्टेंस, डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सारा कुछ यहाँ पे हम देखेंगे, करेक्ट? सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. सो लेट अस से दैट वॉकिंग a distance of 100 meters, correct? Walking a distance of 100 meters. तो ये क्या हुआ? Walking a distance of 100 meters क्या हुआ? Walking a distance of 100 meters क्या हुआ ये? आपको डायरेक्शन पता है? कहीं जा रहे, कहाँ जा रहे? नहीं पता आपको, करेक्ट? लेकिन इफ आई से कि भाई आप यू आर वॉकिंग नाउ, इफ यू वॉक इन द डायरेक्शन, अगर आप यहाँ से निकल के यहाँ से होके यहाँ जा रहे हो तो आपको डायरेक्शन पता है, हाँ, फिर उसे हम वेक्टर बोल सकते हैं. या फिर सेकंड केस में आप यहाँ से निकले, यहाँ से होकर वापस यहाँ पे गए, ओके, देन करेक्ट. टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, हम जब डायरेक्शन देंगे उसको तब जाके वो बनेगा एक वेक्टर क्वांटिटी, करेक्ट? तो हम लोग समझेंगे कि ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, करेक्ट? तो देन वी कैन से इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, करेक्ट? इतना ही सारा ये फिजिक्स से रिलेटेड है, बाकी तो सारा ये नॉर्मल जैसा ही चैप्टर है. आई गेटिंग इट? तो अभी चालू करेंगे. वील नाउ स्टार्ट लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज a vector. पहले से as I said we are going to see this entire thing right from the scratch, forgetting that anybody has seen this before or not seen this before, that really doesn't matter. Okay, so let us understand what is a vector. क्या है vector? Vector is a line segment with a direction.
वेक्टर इज ए लाइन सेगमेंट विथ डायरेक्शन। कैसे बताएंगे उसको डायरेक्शन? इट्स वेरी इजी। देखो, यू ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन और उसको एक डायरेक्शन दे दो इस तरफ, तो ये हुआ आपका वेक्टर। करेक्ट। नाउ मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या होता है? ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी तो नहीं, इसका मतलब ये होता है कि बस एक लाइन जो कोई भी डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन, दिस वी कैन से, दिस कैन ऑल्सो मीन एज कि भाई लाइन एक ऐसे जा रही है तो वो भी एक वेक्टर हुआ, एक लाइन ऐसे जा रही है तो वो भी एक वेक्टर हुआ, एक लाइन ऐसे जा रही है वो भी एक वेक्टर हुआ, और एक लाइन ऐसे जा रही है वो भी एक वेक्टर, और भी कोई डायरेक्शन होगी तो दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर। We can say these are all vectors. Correct? These are all vectors. Correct? Okay. अभी आप मेरी बात सुनो. Now let us take one thing. एक वेक्टर लेते हैं हम लोग, पार्ट्स ऑफ वेक्टर्स देखते हैं क्या है, ठीक है ना? तो ये आपका एक वेक्टर है, ये ओके। अच्छा, ये वेक्टर में दिस पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं हम? वी कॉल दिस एज एन इनिशियल पॉइंट। वी कॉल दिस एज इनिशियल पॉइंट. This is called as the terminal point. Correct? We call this as a terminal point. इसे नाम दे देते हैं. Let us say that this is A and this is B. So A is your initial point and B is your terminal point. Correct? If A and B are in such a way, then अगर ऐसे हम लोग लिखते हैं तो इसे क्या बोलेंगे? Then that is, this now for us will become as a AB vector. इनिशियल पॉइंट से लेके टर्मिनल पॉइंट तक वी विल से इट इज अ ए बी वेक्टर, और उसके ऊपर छोटा सा एरो लेते हैं हम. करेक्ट? दैट मीन्स ए बी वेक्टर मीन्स इफ एनी टाइम इन फ्यूचर व्हेन यू सी दिस लाइन दैट ए बी वेक्टर, तो आपके दिमाग में इमीडिएटली आ जाना चाहिए दैट मीन्स देयर इज अ लाइन ए बी. ओके, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. ओके, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम point A to B. Correct? है ना? Now we are going to do something which is called as a magnitude. ये आपको समझ में आया हो, इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है ये, ठीक है ना? तो अभी आपको दिमाग में आया कि भाई ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर, बी सी वेक्टर, कोई भी वेक्टर, whenever they say any vector you must know that this is a line segment, और वो line segment एक खास डायरेक्शन में is going in a typical direction. Okay, then you will understand it. Okay, much better. तो imagination, how, see this lesson needs a lot of imagination. अगर आपका imagination नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. तो you have to know, जब आप कोई ए बी वेक्टर देखते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए बस एक लाइन सेगमेंट है और एक डायरेक्शन में जा रही है. करेक्ट? एरो तो रियलिटी में लाइन में एरो तो नहीं होता है, कोई डायरेक्शन में जा रहा है तो एरो थोड़ी होता है, लेकिन इमेजिनेशन आपका इस तरह से होना चाहिए. करेक्ट? Okay, now let us see what do you mean by something called magnitude of a vector. It is called as the magnitude of a vector. Magnitude of a vector मतलब क्या होता है? Suppose एक वेक्टर लेते हैं पहले. Let's take a vector. ये आपका एक, suppose this is your vector AB, है ना? देन लेंथ ऑफ द वेक्टर, ये जो अपना वेक्टर है, ओके, इफ ए बी वेक्टर है, इफ ए बी वेक्टर है हमारे पास, ओके, या फिर उसको ऐसे लिखेंगे, वेट, ओके, देन वी कैन से दैट if this is the vector we have, then the length, we can say that the length of AB vector, the length of the vector, या ए बी वेक्टर, तो ये ए बी लिया इसके लिए, बट वी कैन से द लेंथ ऑफ द वेक्टर, the length of the vector is the magnitude of the vector. Correct? It is the magnitude of the vector. जो वेक्टर का लेंथ होता है वही उसकी मैग्नीट्यूड होती है. कैसे डिनोट किया जाता है उसको? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. इट इज डिनोटेड बाय ये लाइन मॉड्यूलस का साइन होता है ना, मॉड्यूलस नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, गेटिंग इट?
तो whenever henceforth now whenever you see therefore we can say that magnitude, ये जब भी दो लाइन होता है मॉड्यूलस के तरह, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ये क्या है, जब भी आप ये साइन देखो तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज दी मैग्नीट्यूड। ये वर्ड हम लोग बहुत यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, ये आपने ये साइन देखकर आपको क्या पढ़ना चाहिए वो मैं बता रही हूँ। अगले जाके सब में जब मैं लिखूंगी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आई एम राइटिंग और व्हाट एनीबडी इज राइटिंग, या फिर आपका क्वेश्चन कैसा हो। दैट इज व्हाई दिस व्हाट आई एम राइटिंग हियर is what should be in the head. What should you read this symbol as? Correct, it is called as the magnitude of vector, which means what, which means length of the vector. Correct, which means length of the given vector. Right, I think ये तो आसान है समझने में भी, ये भी कोई प्रॉब्लमेटिक केस तो लग नहीं रहा है मुझे। करेक्ट, तो एक वेक्टर है, अच्छा मैग्नीट्यूड एंड लेंथ डिस्टेंस। ओके, आपको ये पता, ये जो साइन है ये देखो, ये हमने जो दो डंडियां दी है यहाँ पर जिसे हम मॉड्यूलस भी बोलते हैं। आपको पता है एक बात ना कि मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, लेंथ। क्या लेंथ, कैन लेंथ बी नेगेटिव? मैग्नीट्यूड और लेंथ ये कैन नॉट बी नेगेटिव। करेक्ट, दिस कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। राइट, ये हमको पता होना चाहिए। करेक्ट, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। राइट, यहाँ तक तो काफी आसान है समझना मेरे ख्याल से। राइट, ये चैप्टर आसान है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग एंड जस्ट राइट डाउन। आसान सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज पूरा 3D उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ओके चलो, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? 11th स्टैंडर्ड का 3 डायमेंशन लेसन जिसने भी एकदम हल्के में लिया है, दोज ऑल पीपल आर गोइंग टू, उनका पोजीशन ढीला होने वाला है थोड़ा सा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है देखते हैं। ओके, अब नाउ सी, this is your y-axis, correct, this is your x-axis and this is your say z-axis. Correct, this is your y-axis, this is your y-axis, this is your x-axis and this is your z-axis. ठीक है, चलो अब ये आपका है ओरिजिन, इसे हम बोलेंगे 0 0। ठीक है, okay, now suppose there is a point P here, यहाँ पे एक पॉइंट है which is point P और उसके coordinates are x, y and z. Okay, this is a point P in 3D space. ये कोई 2D space का पॉइंट नहीं है। ये कैसा पॉइंट है आपको पता है? जैसे कि आपके हॉल में एक अगर बॉल रखा है सेंटर में, या फिर एक यू नो व्हेन यू सी विच इज इन द 3D स्पेस, किसी वॉल पे चिपका नहीं है, 3D स्पेस में है। करेक्ट, इट इज लाइक हैंगिंग स्टफ। ओके, वैसा। सो दिस पॉइंट इज, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड इसके लिए क्योंकि ये 3D स्पेस है। सो द वेक्टर टू द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन O, ये ओरिजिन है आपका O, करेक्ट, और ये ओरिजिन से एक वेक्टर जाएगा टूवर्ड्स पॉइंट P। करेक्ट, ये ओरिजिन से एक वेक्टर जाएगा विच विल बी गोइंग टूवर्ड्स पॉइंट P। वेक्टर है, एरो देना पड़ेगा। करेक्ट, सो द वेक्टर टू दिस पॉइंट P from O, this is called the position vector of point P. Correct, ये आपको पता चल रहा है ना? What is this yellow thing? ये क्या है? This is what? This is a position vector. This is a position vector of point P. कैसे डिनोट किया जाता है उसको? It is denoted by O से P तक जा रहा है मतलब वेक्टर OP। करेक्ट, तो नाउ ऑनवर्ड्स ये P पॉइंट हमारे हर एक क्वेश्चन में जहां पे हमें पोजीशन वेक्टर की जरूरत हो, वी विल गिव दैट पॉइंट एंड वी विल
we will make sure that we understand that whenever now OP vector बोलते हैं तो उसे हम लोग we are looking at it as a vector which is hanging. कैसा hanging है सबको पता चल रहा है क्या? what I'm trying to say, hanging मतलब देखो, to reach this point you will have to go, this distance will be your x-axis, then you will have to go, this will be your x-axis, from here you will go, this will be your y-axis, correct, and then you will go straight up to reach this point. थोड़ा सा आगे हो गया ना, थोड़ा पीछे करना चाहिए. Okay, so you will come here and ये आपका y-axis जाएगा और यहाँ से यहाँ तक सीधा पहुँचने में आपका z-axis. Are you getting it? तो this will be your x-axis, this will be your y-axis and this. तो जब आप जाते हो तो ये hanging है बीच में, correct? Now understand what I'm saying, right? Okay. Now what is the magnitude? तो आपको you should understand ये vector है. अगर ये vector है तो इसका magnitude भी होगा, correct? Then that means what is the magnitude of this? Therefore ये question आना चाहिए ना दिमाग में, that what is the magnitude of OP vector? वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होगा ही, करेक्ट. तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. क्यों? अरे भाई ये सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला है. x1 याद है डिस्टेंस फॉर्मूला? किसी को डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? बिल्कुल अंधेर नगरी पेन है ये. रुको, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर. ये सब का अंडर रूट. लेकिन इसमें भाई ये सारा जीरो है ना, क्योंकि ओरिजिन से है, इसके लिए वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दैट इज वाई. एनीवे आपको एक फॉर्मूला मिल गया है, आपका पहला वाला फॉर्मूला, ये लेसन का फर्स्ट फॉर्मूला, करेक्ट. तो द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस लेसन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ position vector is equal to root of x square plus y square plus z square. करेक्ट. ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला ये लेसन का, करेक्ट, फॉर्मूला नंबर 1. ओके, तो आप उसको मार्क करो, लिखो, स्टार करो, जो भी करना याद आपको रखना पड़ेगा. ये आपका है फॉर्मूला नंबर 1, करेक्ट. ओके, सो आई थिंक बाय फार तो डिफिकल्ट तो नहीं है तो फिर कमेंट में डाल दो. आई विल आंसर योर क्वेश्चंस इन केस ऑफ यू हैव एनी डाउट्स. ठीक है ना. अब लेट्स गो अहेड. देखो ये वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत हमको एक 10% समझ में आए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. धीरे धीरे आएगा यार समझ में, इतना भी कोई चैप्टर टफ नहीं है. ठीक है ना. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स. तो हम लिखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स नहीं, वी कैन से देयर आर टाइप ऑफ वेक्टर्स. करेक्ट. टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या है? टाइप ऑफ वेक्टर्स, देखो वेक्टर लेसन बहुत आसान है. मैं ड्यूरिंग द टीचिंग ऑल्सो आई विल ऑलवेज से दैट द लेसन इज इजी, बट एट द सेम टाइम द लेसन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा 3D इसके ऊपर बेस है. जिसको वेक्टर नहीं समझा वो 3D में उसकी बैंड बजेगी. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ ओनली. तो आपको ये वेक्टर करना ही पड़ेगा. करेक्ट. तो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट वेक्टर वी हैव. द फर्स्ट वेक्टर वी आर लुकिंग एट इज कॉल्ड एज द को-इनिशियल वेक्टर. इट इज कॉल्ड एज द को-इनिशियल वेक्टर. जैसा नाम वैसा वेक्टर. को इनिशियल. को का मतलब क्या होता है? को मतलब सेम. और ये तो इनिशियल पॉइंट है. इनिशियल वेक्टर का क्या मतलब होता है? कि जिसका इनिशियल पॉइंट. करेक्ट. हाँ, तो फिर इसका मतलब दोज टू वेक्टर्स हु हैव अ सेम इनिशियल पॉइंट. तो कैसा आएगा? हाउ विल दैट बी? दैट विल बी वन वेक्टर विल गो लाइक दिस
from the same initial point you will have another vector going this side. करेक्ट? तो ये आपका इनिशियल पॉइंट A है, सपोज ये B वेक्टर है और ये C वेक्टर है. करेक्ट? सो वी कैन से दैट, देयरफॉर वी कैन से दैट वेक्टर AB and vector AC are what? Are co-initial vectors. They are co-initial vectors. Correct? Because why? Because as they have the same initial point, as they have the same initial point, है ना? Okay, let's see what's the next vector we have. Okay, चलो next vector को क्या बोलेंगे हम? कोलिनियर वेक्टर. ये नाम कितने आसान और कितने पहले हमने देखे हुए हैं ना. इसे कहेंगे कि कोलिनियर वेक्टर. व्हाट इज अ कोलिनियर वेक्टर? वापस को का मतलब होता है सेम. को का मतलब होता है सेम. लीनियर का मतलब होता है लाइन, वो तो हमें पता ही है. मीन्स व्हाट? मीन्स वेक्टर विच आर अलोंग द सेम लाइन. करेक्ट? इस केस में आई राइट द डेफिनेशन फर्स्ट. इस केस में लिखेंगे कि वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन. डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए. ठीक है ना? डेफिनेशन नहीं पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए. आई एम नॉट गिविंग यू द बुक डेफिनेशन. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर है, ये जा रहा है यहाँ पर. ठीक है? अब ये भी वेक्टर जा रहा है इस तरफ. दो दो वेक्टर है, तो सो इट कैन एक्चुअली मीन दैट, अच्छा ये जो वेक्टर है ना आपका, ओके, दिस वेक्टर, ये वेक्टर कहीं पे भी मूव कर सकता है. करेक्ट? अच्छा एक काम करेंगे हम लोग, पहले एक लाइन वी विल ड्रॉ फॉर अ रेफरेंस. ओके, लेट्स टेक वन लाइन. ये लाइन है. लाइन मतलब इट विल हैव एन एरो ऑन both the sides. Now let us draw one vector which is going this side. Let us draw another vector which is going this side. Suppose ये आपका A वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है. ठीक है? आपने जो लाइन ड्रॉ करी है उसे हम बोलते हैं लाइन L. करेक्ट? ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. अच्छा, देयर इज अनदर वेक्टर विच इज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ A, तो ये बनेगा नेगेटिव वेक्टर. करेक्ट? ये वेक्टर भी है, या फिर नेगेटिव वेक्टर नहीं, सॉरी, ये बनेगा C वेक्टर. करेक्ट? ऐसे you can just, there is, so all these vectors are along this line. Correct? So that means what? Vector in any direction parallel to the same line are called what? Collinear vectors. क्या बोलेंगे हम लोग? Therefore we can say that vectors in any direction, vectors in any direction parallel to the same line, parallel to the same line are called collinear vectors. करेक्ट? एक ही लाइन में है ना सारे, देखो. करेक्ट? तो ऐसे हम बोल सकते हैं therefore we can say that, therefore क्या बोलेंगे हम? therefore we can say that A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर and D वेक्टर, what are they? They are collinear vectors. Correct? They are collinear vectors. करेक्ट? ठीक है? तो दो टाइप के वेक्टर्स हमारे हो गए. पहले तो को इनिशियल वेक्टर, दूसरा हुआ को लीनियर वेक्टर. ठीक है? चलो लेट्स गो अहेड. देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ वेक्टर विच इज कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर. इसे कहते हैं इक्वल वेक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वेक्टर? वेयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल and direction is same. Equal vector क्या होता है? When magnitude is equal. Magnitude कैसा होता है? When magnitude is equal, magnitude is equal and
इसके नीचे लिखती हूँ मैं, देन यू विल अंडरस्टैंड। एक क्वालिटी क्या है उसकी, मैग्नीट्यूड इज इक्वल। दूसरी क्वालिटी क्या है, डायरेक्शन इज सेम। When you see two vectors of equal magnitude and going in the same direction, then we can say that they are called as equal vectors। जिसका मतलब कैसे कि ये है A वेक्टर, करेक्ट, और ये दूसरा वेक्टर आपका बनेगा सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका है B वेक्टर, करेक्ट। सो वी कैन से दैट यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर is equal to magnitude of B vector, correct, and direction is also same, correct, and direction is also same, so then they will become equal vectors, correct। therefore we can say that A vector A is equal to vector B, correct, they are equal vectors, correct। ये भी काफ़ी आसान है ना, आसान है ना ये लेसन, अभी तक तो सो फार सो गुड, राइट। आई थिंक पूरा लेसन ऐसे ही है, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग वी विल सी, दिस इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव वेक्टर, इसे कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। ये कलर्स आई एम ट्राइंग टू यूज, बट आई थिंक स्टिल इट इज नॉट गिविंग मी दैट differentiation of the topics। anyway चलो देखते हैं, ओके। नेगेटिव वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव वेक्टर। सपोज एक वेक्टर है, यहाँ से जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एंड दिस इज ए वेक्टर, करेक्ट, एंड दिस वेक्टर इज गोइंग लाइक दिस, और ये है उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो सेम मैग्नीट्यूड इक्वल है उसका और डायरेक्शन ऑपोजिट है। देखो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, हम लोग इक्वल कर देते हैं, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसे बोलेंगे हम, वी विल कॉल दिस एज अ नेगेटिव वेक्टर, करेक्ट। अगर हमारे पास, दैट मीन्स अगर ये वेक्टर है तो दिस विल बी द नेगेटिव वेक्टर, करेक्ट। अगर ऊपर का वेक्टर हमें दिया हुआ है, देन द वन बिलो विल बिकम द नेगेटिव वेक्टर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन वी कैन राइट डाउन, दैट व्हेन मैग्नीट्यूड इज इक्वल, पहला क्या है कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल और डायरेक्शन इज ऑपोजिट, ये फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट क्या हुआ, डायरेक्शन इज ऑपोजिट। देखो ऊपर क्या था, मैग्नीट्यूड इज इक्वल और डायरेक्शन इज सेम, तो इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड डायरेक्शन इज ऑपोजिट, तो क्या हुआ, नेगेटिव वेक्टर, करेक्ट। दे आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर्स, ओके। डायरेक्शन इज ऑपोजिट अगर है तो दिस इज कॉल्ड एज अ such kind of vectors are called, such vectors are called negative vectors, करेक्ट, ओके। चलो अब देखते हैं बहुत एक, ओके तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज आई सेड हमें सीखना है अभी, विच इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। तो लेट्स सी व्हाट यूनिट वेक्टर्स आर। ये बार बार ये आप सुनोगे, करेक्ट। ये कौन सा था, आई थिंक फिफ्थ है शायद, वन सेकेंड। सो दिस इज द फिफ्थ टाइप ऑफ वेक्टर विच वी आर सीइंग, विच इज कॉल्ड एज द यूनिट वेक्टर। क्या है यूनिट वेक्टर, लेट अस सी। सपोज एक वेक्टर है आपके पास, यू हैव अ वेक्टर, से दिस इज अ वेक्टर, ओके, एंड दिस वेक्टर इज, this is, suppose this is a 5 unit vector। 5 unit मतलब you will have 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 1 2 3 4, okay one second I'll just redraw it, ये पूरा ही निकल जाता है, okay let's say ऐसे, and 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, तो अब ये 5 unit vector, okay। so if this is the 1 unit, this is 2 unit, this is 3 unit, this is 4 unit, this is 5 unit। so let's say that this is a 5 unit vector, okay। so if this is a 5 unit vector, see unit can be anything,
Please, unit can be meter, centimeter, anything, correct? Newton, correct? Whatever units we have learned so many type of units can be anything. We are talking about vectors. This is a 5-unit vector. Okay, now see this this if I draw this, if you take this direction here, correct, the same magnitude, if this is this distance, okay, the one which I have drawn with yellow line, okay. Now if I draw, or if we draw another vector of the same magnitude, and we call that as a vector, क्या किया हमने, we took a 5-unit vector और उसका जो 1 unit है, see in the same direction and the same magnitude, तो equal vector हुआ ना ये. तो अगर ये यूनिट वेक्टर है, if this is 1 unit, then can we call this as a unit vector? You understanding what I'm saying? है ना. तो ये a वेक्टर जो हमने निकाला है, ये a वेक्टर अगर एक वेक्टर है और ये वेक्टर, ये this a वेक्टर, okay, and if I say that, and magnitude of a vector will be equal to what? It will be 1 unit. क्यों 1 यूनिट? बिकॉज भाई ये लाइन के साथ ये सेम डायरेक्शन है ना. एनी वेक्टर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ द गिवन वेक्टर, है ना. जो भी एनी वेक्टर होगा आपके पास, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सपोज कि एनी वेक्टर क्या है उसको, विच इज one second, I'll write it as a definition below this. Definition is not a book definition per se, but so therefore we will say that any vector which is equal to 1 unit of the given vector. आपको कोई भी यूनिट का, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, न्यूटन, वॉटेवर यूनिट का एक वेक्टर जो होता है, अगर इफ यू ड्रॉ एनी अदर वेक्टर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ द गिवन वेक्टर in the same direction, है ना, of the given vector is called as a unit vector. करेक्ट. कोई भी आपको वेक्टर हो इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. एक यूनिट का वो वेक्टर है. करेक्ट. यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है 1. यूनिट मीन्स 1. करेक्ट. यूनिट का मतलब क्या होता है? 1. एंड दिस इज डिनोटेड कैसे? यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है पता है आपको? यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है, और यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय व्हाट? इज डिनोटेड बाय ए कैप. क्या बोलते हैं उसे हम? ए कैप. करेक्ट. वी डिनोट दिस बाय ए कैप. ओके. तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस. ओके, 1 सेकेंड, बिकॉज मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है. ओके, सो वी कैन से दैट देयरफॉर अ यूनिट वेक्टर डिनोट कैसे किया जाता है? ए कैप. कैसे बोलेंगे उसको? वी विल कॉल दिस एज ए कैप. ओके. एंड मैग्नीट्यूड क्या है उसका? मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ऑब्वियसली ना, 1 यूनिट का ही है ना वो. डिस्टेंस उसका, लेंथ उसका 1 है ना, जो भी यूनिट हो. करेक्ट. तो दैट इज वाई वी कॉल दैट एज अ वेक्टर ऑफ 1 मैग्नीट्यूड. करेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू नो, काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है ये. समझ जाना. डिफिकल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट है. हर एक डिफिकल्ट चीज इंपॉर्टेंट नहीं, सॉरी, हर एक इंपॉर्टेंट चीज डिफिकल्ट होना जरूरी नहीं है. चीजें आसान भी होती हैं और फिर भी वो इंपॉर्टेंट हो सकती है. करेक्ट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज कॉल्ड एज ए जीरो वेक्टर. करेक्ट. 6th टाइप का ये वेक्टर है जिसे कहते हैं जीरो
वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब क्या होता है इसका? जीरो वेक्टर मतलब जीरो मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्री डायरेक्शन। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है? मैं पॉइंट में लिखते हैं, आई थिंक दैट इज अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड, करेक्ट? सो इट इज जीरो मैग्नीट्यूड and second is equal to arbitrary direction। आर्बिट्री का मतलब पता है ना सबको? आर्बिट्री डायरेक्शन। आर्बिट्री मतलब कोई भी डायरेक्शन, इट कैन बी एनी डायरेक्शन। जैसे हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट भी क्या होता है? इट इज एनी कांस्टेंट, करेक्ट? दैट मीन्स डायरेक्शन कैन बी एनीथिंग। ओके, देखो एक बात आप समझो, जीरो वेक्टर का एज सच देर इज नो ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन। ओके, इट इज बेसिकली अ रिजल्टेंट वैल्यू। ये क्या है? देर इज नो ज्योमेट्रिकल, इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, देर इज नो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट? ये क्या है देन? अ जीरो वेक्टर बेसिकली इट इज अ रिजल्टेंट वैल्यू। इट इज ए रिजल्टेंट वैल्यू। रिजल्टेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? मतलब कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, करेक्ट? प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर, करेक्ट? ये आपको मिलेगा जीरो वेक्टर लाइक दिस, करेक्ट? इसको दिस इज अ रिजल्टेंट वैल्यू, करेक्ट? तो दिस ये वेक्टर का कोई भी जीरो वेक्टर का नहीं निकाल सकते हम, पॉसिबल ही नहीं है वो। आई अंडरस्टैंडिंग? दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज अ जीरो वेक्टर। एक रिजल्टेंट वैल्यू, उसका ग्राफ अभी तक हमने कितने ग्राफ ड्रॉ किए, वैसा इसका नहीं हो सकता, करेक्ट? ओके, ओके, so now we are going to understand the concept of free vectors. What do you mean by free vectors? Correct? Free vectors मतलब क्या होता है? देखो, suppose we have a particular vector. Let's say we have this vector with us. Okay, we have three type of vectors. ये तीन vectors है हमारे पास, correct? अच्छा, if you observe these all three vectors are in different directions and different magnitude, correct? Now imagine that we are able to move these vectors, we can displace these vectors, okay? We can displace them like parallelly। जैसे कि अभी वो यहाँ पर है तो we will get it here, ओके इस वेक्टर को हम लोग इसके पास लेके आएंगे एंड देन वी कैन गेट दिस वेक्टर हियर। इफ वी आर एबल टू डिस्प्लेस दिस वेक्टर विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड and their direction, correct? We are able to, if we are able to displace these vectors without changing their magnitude and their direction, then we call them as free vectors। Are you getting it? तो यहाँ पर इन दिस केस कहाँ पे काम आता है ये? यू नो सपोज ये टू एक तो ऑफ कोर्स टू सॉल्व आवर सम्स ये काम आएगा, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। बट देन सपोज एक स्टोन है जिसका कोई शेप नहीं है, ऐसा कुछ एक स्टोन है, बहुत बड़ा एक सॉलिड ब्लॉक है, रॉक, ओके? एंड यू नीड टू पुश दिस, करेक्ट? अगर आपको ये पुश करना है, ओके, देन व्हाट विल हैपन? अगर if you need to push this in many directions, then we have to find the direction of force in which we have to actually push this for this to move। ये पत्थर बहुत बड़ा है, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा मूव करना है फॉर सम रीजन, लैंड में से एक डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखो ये पत्थर को शेक भी करना है, थोड़ा सा बहुत बड़ा है, तो फोर्स दिस विल नीड somebody will push it, somebody will pull it, correct? some else will pull it this direction। तो जिसकी जितनी ताकत होगी वो उस तरह से इस पत्थर पे जोर लगाएगा तो ये पत्थर थोड़ा बहुत हिलेगा, करेक्ट? तो वी आर गोइंग टू डिस्प्लेस। तो ये जो वेक्टर यहाँ पे होता है, ये कितना, हाउ मच विल इट मूव? एनीवे ये सब छोड़ देते हैं अभी, इसका भी ज्यादा आप डोंट गो वेरी टेक्निकल अबाउट इट। लेट अस जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस वेक्टर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर क्या स्टेट करता है? कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, इट स्टेट्स दैट, we can say that it states that if we have say a vector
okay, then without changing magnitude and direction, without changing magnitude and direction, if, or rather we can displace it parallelly. Correct? So without changing magnitude and direction, we can parallelly displace a vector. This is called as a free vector. This is called as a free वेक्टर. हम उसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं. वन थिंग वी ऑल हैव टू रिमेंबर, ये एक नोट है सबके लिए, दैट इन दिस चैप्टर विच इज ऑफ ग्रेड 12 एनसीईआरटी जो हम कर रहे हैं अभी, करेक्ट, we will consider all vectors as free vectors, which means whenever required we will displace them parallelly. Correct? All the vectors in this chapter will be considered as free vectors. We will displace them because we want to solve sums, so we will displace them as and when we require to do that. Correct? Okay, see in NCERT they have mentioned something about direction, cosine and ratio, which is you know बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन और इजी भी है, लेकिन कभी कभी समझते समझते उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है, which we will see what it is. As of now we can, whatever we have done, we can finish our sums on this thing. 10.1 के sums तो हम ऐसे ही ख़त्म कर सकते हैं. Let's do some examples before that. Okay, suppose we have to represent graphically a displacement of 40 kilometers. कैसे बताओगे? 40 kilometers on 30 degree west of south. How will you show this? Okay, that means अगर if you take this, suppose you take this axis, है ना, ये क्या आपका ईस्ट एंड वेस्ट, and then you can take this will be north and south. तो if you take 10 kilometers equal to, आपको स्केल तो लेना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ, so can we say let 10 kilometers equal to 1 centimeter. Okay, this is the scale of the graph. Correct? That means we can show line segment of 4 unit magnitude along 4 unit. क्यों? क्योंकि 40 किलोमीटर चाहिए ना, तो we will show a line segment of 4 unit magnitude towards 30 degree of south west. साउथ ये है, वेस्ट ये है, तो 30 डिग्री यहाँ से we can just show it from here. Okay, एक 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 डिग्री का हो गया. करेक्ट? 40 किलो, दिस वी कैन बी 40 किलोमीटर बिकॉज वी हैव टेकन 10 किलोमीटर एज 1 unit 1 centimeter scale पर. So this will become 10, this will 10, this will 10, this will 10, 40. Correct? This is going to be south west. इतना आसान है, कुछ भी नहीं है ये. Correct? चलो, now I'm going to write a few things. ओके, इसको क्लासीफाई करो आप, स्केलर है कि वेक्टर है में. ओके, तो फर्स्ट इज 5 सेकेंड्स. क्या है 5 सेकेंड्स? स्केलर है कि वेक्टर है ये? 5 सेकेंड्स. 5 सेकेंड्स टाइम देता है, ये स्केलर क्वांटिटी है. करेक्ट? दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी. देन वी हैव 100 सेंटीमीटर क्यूब. क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब? अगेन दिस इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी. देन वी कैन से 10 न्यूटन. 10 न्यूटन, न्यूटन किसका है? 10 न्यूटन फोर्स है ना, फोर्स का डायरेक्शन तो होता ही है, तो फिर वो हुआ क्या? वेक्टर क्वांटिटी. करेक्ट? देन वी कैन से 30 किलोमीटर्स पर आवर. 30 किलोमीटर्स पर आवर कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं पता, तो
स्केलर क्वांटिटी। फिफ्थ में देखो 10 grams per centimeter cube, scalar quantity. Then suppose let's take 20 meters per second towards north। अब तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग उतने तो होशियार हो ही गए हो कि ये है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। करेक्ट। दैट मीन्स स्केलर इज इक्वल, स्केलर क्या होता है अगर आपने देखा हो तो अ क्वांटिटी बिकम्स अ स्केलर क्वांटिटी व्हेन यू ओनली नो द मैग्नीट्यूड। करेक्ट। then it becomes a vector quantity when you know magnitude okay, when you have magnitude and direction दोनों भी। करेक्ट। then अगर आपके पास डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, ये दोनों भी अगर आपके पास है तो वो क्या देगा आपको, दिस विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट। एंड अगर आपके पास स्पीड है और डायरेक्शन भी है तो वो क्या देगा आपको, स्पीड प्लस डायरेक्शन विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू वेलोसिटी। करेक्ट। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन विल गिव यू वेलोसिटी। तो ये सारे जो येलो कलर में मैंने लिखे हैं यहाँ पर, these all examples, these can be taken as explanations for this। बहुत आसान था, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो you can refer to my explanation on the yellow side, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। करेक्ट। चलो, now let us see। okay, now we are given this figure। okay, and we have to find out which of these vectors are collinear, we have to find out which vector are equal, and we have to find out which vector are co-initial। correct। तो देखते हैं पहले। so first of all collinear, let's find out the answer to the first question। तो यहाँ पर if you take a line, okay, what is the पहले हम एक काम करेंगे, we will just name this vector। this is your A vector, this is your B vector, this is your C vector, and this is your D vector। now what is the definition of a collinear vector? all the vectors which are parallel to a given line। so suppose ये एक line है हमारी, line L। correct। so which vectors are parallel to line L? A vector is parallel, C vector is parallel, and D vector is parallel। correct। so can we say, therefore we can say that A vector, C vector, and D vector, what are they? are collinear। correct, because they are parallel to the same line। correct। now question number 2, equal vectors। what do you mean by equal vectors? equal vector definition क्या है, vectors in the same with the same magnitude and the same direction। ऐसे दो vectors है यहाँ पर, कौन से है, they are A vector and C vector। they have the they are equal, they are in the same direction and they have a same magnitude। so we can say that A vector and C vector are what, are equal vectors। correct। okay, now the third one, third question क्या दिया है, co-initial। co-initial मतलब vectors which have a same initial point। so which vectors have a same initial point, check करो तो, ये सेम इनिशियल पॉइंट है ना, यहाँ से कौन सा वेक्टर निकल रहा है, this and this। correct। so can we say therefore B vector, C vector, and D vector, what are they? they are co-initial vectors। correct। okay, so this is enough for you to understand your what is that, exercise 10.1। 10.2 I'll do a separate video on that। आप क्योंकि concepts थोड़े अलग है उसके, we can't mix the videos there। okay, so go through the exercise and exercise के sums यार करो। एक्सरसाइज के सम्स अगर करोगे नहीं ना तो ये लेसन सिर्फ एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा देर टिकेगा भी नहीं। यू हैव टू डू द एक्सरसाइज सम्स। ठीक है, तो प्लीज़ इजी भी हो डिफिकल्ट हो फिर भी करो, यू हैव टू डू देम। करेक्ट। चलो देन, थैंक यू गाइस, सी यू ऑल अगेन, बाय बाय।